Okay, Dr. Naila, Yes, ma'am. this is your scenario that you are provided with the image. Interpret the findings, and then we'll proceed. Mm. Ma'am, this is the ultrasound previous picture that's showing the Hmm. ovary Hmm. that is on right ovary, Hmm. which consists of the multiple cyst, follicular cyst Hmm. in a pearl Hmm. condition, Hmm. and Hmm. What else? no you Hmm. and there is a fluid Uh, Fluid? house, Huh? multiple cystic ovary. Okay. Yes. So, what is your interpretation? My most probably that in this case that is there is a multiple cyst Hmm. inside the What? ovary, Okay. so What? it What? could be the Hmm. What are your differentials? differential polycystic ovary, Hmm. And can be the O. This is can be what? can be ovarian hyperstimulation Okay. Good. syndrome, Good. What else? and can be the polycystic disease. वो तो बता दिया, तीसरा एक बताओ अभी. तीसरा ये होगा Benign or malignant बेनाइन conditions. ovarian ट्यू हाँ बेनाइन ovarian Good. ठीक है. Any benign or malignant ovarian malignant cystic ovarian lesion. tumor ठीक है. Good. disease. So, you are how you will proceed with this? You are provided with the image and you have provided me differentials. So, how will you proceed? Ma'am, I will proceed uh, from the history on the Hmm. history basis Hmm. and clinical examination and Hmm. investigation, Hmm. and then I will reach to the probable diagnosis. Good. So, take your history. Um, After greetings and mutual introduction with the patient, I will take the biodata, including her name, age, and married since, occupation, education, Hmm. and then last menstrual period. Hmm. And further, I will inquire about the menstrual cycle, Hmm. and then frequency of menstrual cycle. Hmm. Is there any infrequent periods, Hmm. oligomenorrhea, Hmm. amenorrhea, Hmm. and signs of the hyperandrogenism, Hmm. any hirsutism, Hmm. acne, Hmm. and a history of obesity, any medical disorder, Hmm. and a history of subfertility is there, Hmm. and a medical disorder including hypertension, diabetes, Hmm. thyroid Hmm. disease, and then Hmm. any history of taking any treatment during her period, during her condition, and Hmm. then I will take the past surgical history, drug allergy history, and Hmm. a personal history, Hmm. history of smoking, Hmm. and any drug addiction, Hmm. and then socioeconomical history, Hmm. and any history of gynecological history, mostly the history of the contraception, Good. and having any contraception in the form of the pills, what Hmm. type of the contraception she has used, any history of Pap smear taken, Hmm. and uh, Good. also I will take the history of the Hmm. vaginal discharge, Hmm. color, consistency, amount, Hmm. any history previously, Hmm. previous history of chronic pelvic pain, Hmm. and history of sexual intercourse, sexual history, including history of Hmm. dyspareunia, deep Hmm. dyspareunia, superficial dyspareunia, Hmm. and postcoital bleeding, intermenstrual bleeding. Good. Excellent.
बहुत अच्छा हिस्ट्री लिया आपने। ठीक है नाइला। बस जैसे ही आप स्टार्ट करते हो ना, एक दफा आप पूछते हो कि व्हाट इज द व्हाई व्हाट्स द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ द पेशेंट। मतलब वो आई किस चीज हम्म, के लिए। ठीक है। ये एक ऐसे ही अच्छा रूटीन का स्कैन था, या वो एक वाकई मसले के साथ आई थी, उसको पेन है, उसको क्या मसला है जो उस वजह से आई थी। ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो अपनी फाइंडिंग वहीं पे एग्जामिनर से ले लिया करो। व्हाट्स हर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। जब वो बोलती है, कोई फाइंडिंग नहीं देती, बोल देती है, तो आपने उसी को पहले एलेबोरेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जैसे ओके बोल रही मैम। हूँ शी इज हैविंग ओ- एमेनोरिया ऑफ 4 months। ठीक है, ये उसकी प्रेजेंटिंग इलनेस है। सही। तो इस तरह से आप फिर ओके। उसको एलेबोरेट करते हो कि सिंस हाउ लॉन्ग ये एमेनोरिया है, मैरिड है, पास्ट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री क्या है, तब आप उसको अच्छे तरह से छानबीन करते हो। सही है। तो सही। इसीलिए मैं कहती हूँ इट इज नॉट अ वन साइडेड स्टेशन, नेवर। ठीक है। ना स्ट्रक्चर डिस्कशन, ना रोल हाँ, प्ले। यू ऑलवेज हैव टू बी इन टच okay. विद द एग्जामिनर। Ma'am, what history findings in this patient? Yes. So this patient is Oh, having amenorrhea of 4 months. Okay. okay. This is her secondary amenorrhea. Okay. And Oh, she is experiencing weight gain. 4 months. Okay. History of weight gain since. Yeah. She is having weight gain since 1 year. Okay. जी। ठीक। Other symptoms. रेस्ट ऑफ द फाइंडिंग्स आर नॉर्मल, कोई उसकी खास हिस्ट्री नहीं है। दीज टू हिस्ट्री, शी इज मैरिड। बाकी जो है आपको एग्जामिनर सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स देती है। ठीक है, वो इतना डिटेल से हर एक Ma'am, चीज नहीं बताती। okay. Yes, ma'am. मैरिड, जो जो जरूरी है वो आपको वहीं पे वो मेंशन And कर she is देती married for how many years? है। शी इज मैरिड फॉर 6 months। Age of patient. पेशेंट इज 23 years old। Okay. ओके। Any treatment she has received for amenorrhea or not? नो, नो ट्रीटमेंट till now. She's here. It's her initial assessment. It's her initial scan and initial assessment. Okay. Okay, ma'am. हम्म। तो अब देखो, एग्जाम में तुमने समझो अगर ये एग्जाम होता तो एक बार तुमने एक तरफा हिस्ट्री ली, फिर अब दो तरफा हिस्ट्री के लिए दोबारा 2 मिनट लगा रहे हो। ठीक है। तो बेहतर Yes, यही ma'am. है कि वो जो आपके पहले के 3 मिनट्स हैं उन्हीं में आप कंटिन्यूअस जो है अपनी फाइंडिंग्स लेती जाओ। ठीक है। बजाय इसके कि आप अपना एक 3 मिनट पहले पूरा बोलने में और फिर 3 मिनट फाइंडिंग्स में आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। सो दीज आर ओनली फाइंडिंग्स विच एग्जामिनर प्रोवाइड्स। नेक्स्ट, what you will do? Um, I needs the examination findings and any family history of in her family history of PCO. बस वो तो हो गया ना। हिस्ट्री आप कंप्लीट कर चुकी हो। अब आप एग्जामिनेशन जब आपने बोल दिया, अब दोबारा Okay, जंप नहीं positive करो। finding in examination, ma'am. हम्म। क्या इस तरह नहीं ना, पूरा मांगो। व्हाट डू यू वांट ऑन Ma'am, एग्जामिनेशन? in examination, I want a BMI, height and हम्म। weight of the हम्म। patient to calculate BMI, her BMI. yes, it's 29। BMI and her blood pressure, general नॉर physical examination, नॉर्मल, नॉर्मल, thyroid and thyroid examination, नॉर्मल। and um, chest examination, mostly the breast examination, any nipple discharge. नेगेटिव। Okay. On abdominal examination, I will see the inspection, हम्म। palpation, and a depulpation, superficial palpation and depulpation, and inspection. On inspection, I would like to see any scar mark. नो स्कार मार्क कर देते। Ma'am, sorry, I forget. Oh, any nigricans in her neck. हम्म। नेगेटिव। Okay, acanthonegricans negative. And abdominal examination, any positive finding?
नो, an यू हैव टू आस्क मी। inspection and a pulsation. यू हैव टू आस्क मी क्या चाहिए तुमको, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। Ma'am, I want to see any mass in the lower abdomen. नो, नो Any मैस। there is any bulging in the hernial orifices or not? नॉर्मल। बल्जिंग नहीं बोलते, आर Any हर्नियन ऑरिफिसेस tenderness? इंटेक्ट। Okay. Any tenderness in the lower abdomen? नेगेटिव। And for speculum examination, local examination, I would like to हम्म। see the हम्म। status of the cervical loss, any discharge coming, and हम्म। vulva, and then I need a हम्म। pelvic examination finding in which हम्म। I would like to see the size हम्म। of the uterus, हम्म। consistency, mobility, any adnexal tenderness. इस एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं? जी मैम, इस एग्जामिनेशन का एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको? Bimanual. Bimanual bimanual examination. examination. गुड। ठीक है, ये पेल्विक एग्जामिनेशन नहीं है, ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है। जो Bimanual आप, examination. हाँ, हेडिंग वाइज आपने हर चीज बतानी है, यही मैं अभी देख रही हूँ। ओके, कंटिन्यू करो, फिर मैं एंड में आपको बताती हूँ। हम्म। Yes. And हम्म। then adnexal mass, हम्म। नेगेटिव। any tenderness. Okay. हम्म। Um, okay, ma'am. you're done. All yes. So somebody else would like to attempt this examination? Okay. I forget the grow, hair hair pattern, hair growth pattern. जो इसमें So, सबसे इम्पोर्टेंट था। और क्या भूला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था? अच्छा, इसमें जो था, मेन जो था, मुझे एकेंस नाइग्रिकन्स, वो आपने बोला कि नहीं है। हम्म। And then Acne, hirsutism, हम्म। hirsutism, overall yes, contour of the body. हम्म। and truncal obesity also I would like to see. गुड। तो जो चीजें मैंने यही कहा ना, कि एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आप कितनी फोकस्ड एग्जामिनेशन जानती हो। ना एक signs of virilization भी देखने का। एग्जैक्टली ठीक है, पर अब एक बात, मैं आप लोगों को, ये क्लास है इसीलिए मैं इसको बहुत डिटेल से मैं बता रही हूँ। आज जितने भी मेंबर्स हो, गौर से सुन लो और इसको अपने लिए लिख लो। जब आप किसी चीज की एग्जामिनेशन, अब जैसे पर स्पेक्युलम जा रहे हो, एग्जामिनेशन की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, जब आप वो हेडिंग्स Yes, याद कर लेते हो, फिर उसके अंदर कुछ चीजें पूछनी होती हैं, वो आप याद कर लेते हो। मेरे कई सारे लेक्चर्स जो हम एक महीने से कर रहे हैं, नाउ वी हैव रीच्ड जनरल गायनी का एंड है हमारा, हर उसमें दिए हुए हैं कि आप हेडिंग वाइज, कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एज पर रूटीन, हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हर लोकल पर वजाइनल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन ऑफ द जो वल्वा वजाइना है, कमेंटिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द वल्वा वजाइना, देन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन। लेकिन अब आपने क्या किया, बजाय हेल्थ ऑफ द वल्वा वजाइना और जो आपकी केस रिलेटेड विरिलाइजेशन, कुछ कमेंट्स इस पे होते, एनी डिस्चार्ज, डायरेक्ट जो है आप सर्विक्स में चले गए। ठीक है, yes, yes, इट इज नॉट द वे। हमेशा एक सिस्टमेटिक तरीके से, आप किसी घर में भी एंटर होते हो तो पहले एक गेट होता है, फिर एंट्रेंस होता है, फिर हॉल होता है, फिर कमरे होते हैं। इसी तरह से जाते हो ना, किसी भी जगह पे आप जाते हो, हॉल, किसी मॉल में भी जाते हो, एक आप उसका एंट्रेंस होता है, एक उसका अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके रोज है, उसके कॉलम्स है। तो वाई, जब ना इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीजें मिस होती हैं ना किसी चीज में, तो फिर वाई वी आर डूइंग थिंग्स हैphazard इन हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस। अब तक आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। ठीक है, सही है। स्ट्रक्चर डिस्कशन, अगर हम रोल प्लेयर भी करते हैं तो हम एग्जामिनर से इंग्लिश में ही yes, फाइंडिंग्स मांगते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइनें हैं,
ये सब आज मुझे लिखोगे और सब ग्रुप में मुझे ये अपना मैसेज करोगे, अपना स्क्रीनशॉट भेजोगे कि व्हाट यू लुक ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, per abdominal examination, per vaginal examination, per speculum examination and bimanual examination and per rectal examination. ये होता है पूरा, इनमें क्या क्या देखते हो ये आज मुझे सब लिख के भेजोगे, ठीक है? जी जी। गुड। तो इसलिए हाँ, मतलब मैम इस तरह से नहीं कह सकते कि मतलब लोकल एग्जामिनेशन नहीं या जेनिटल देखो, एग्जामिनेशन। कल कल मैंने इतना बड़ा डिटेल से आप लोगों को ये समझाया, जी जी मैंने जी ये जी। एग्जाम्पल दी कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो फाइंडिंग तुम्हें जी चाहिए उसका नाम जी। नहीं लोगी, एग्जामिनर तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है? हाँ हाँ जैस जी जी, नहीं ठीक है, बताते। जैसे हाँ शॉर्ट केसेस होते हैं, शॉर्ट केसेस में नहीं, अगर अभी पेश जो स्ट्रक्चर में कह रहे थे ना, तो हाँ, व्हाट विल यू वांट, वो इस हम्म, तरह से ही बोल रही थी। हाँ तो यही मैं कह रही हूँ। अब जी तक जी। अब आप लोगों का ये 1.5 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, अब ये आपको फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए थी, ठीक है? सही। ये जी ये जी। ये अब अगली प्रेजेंटेशन में मैं ये मिस्टेक्स ना देखूं, ठीक है? ये ओके, थैंक फ्लो में, ठीक है? अच्छा, यू। कल कल हमने बहुत डिटेल्स इनको कवर किया था कि स्पेसिफिक जो वो है एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है वो हमें क्या मिलती हैं, ठीक है? वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई वांट समवन एल्स, यहाँ से कोई वॉलेंटियर करे, जरगुना कुछ कोई भी जो दोबारा से इसको कवर करे एग्जामिनेशन को। नाइला आप जाओगी नहीं, सिर्फ मैं बीच में एक और सुनना चाह रही हूँ एग्जामिनेशन। जी जरगुना आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, Zarguna, do the examination of the patient. It's a structured discussion. Okay. Ma'am, I'll examine my patient in the presence of a chaperone. Hmm. I'll check her vitals to rule out comorbidities. I'll calculate her BMI. I'm Hmm. going to look for general appearance of the patient, Hmm. central obesity, Hmm. acne, hirsutism. Hmm. Acne, hirsutism, I'll palpate her thyroid, look for male pattern baldness. Hmm. I'll exclude signs of Cushing syndrome like moon face, Hmm. hump neck, Hmm. and acanthosis nigricans. I'll exclude signs of acromegaly, Hmm. large feet, large hands, Hmm. and ma'am, I'm going to look for the signs of viralization Hmm. like breast atrophy, Hmm. clitoromegaly, increased muscle mass, Hmm. and I'm going to look for any nipple discharge. Then I'm going to do abdominal examination. Hmm. On inspection, I'm going to look for the symmetry of the abdomen, any scar mark, any visible pulsation, any visible mass. On palpation, I'm going to look for any tenderness, guarding, rigidity. Hmm. And then I'm going to do pervaginal examination. On inspection, I'm going to look for the external genitalia, estrogenic distribution of the Hmm. pubic hairs. And Hmm. I'm going to do any vaginal discharge, any bleeding, Hmm. any massive visible. I'll do speculum examination to Hmm. look for the health of the vulvovagina, cervical health, Hmm. any discharge, any massive visible. Then Hmm. I'm going to do bimanual examination to look for the cervical consistency, to look for the size of the uterus, position of the uterus, any tenderness of the uterus, and any tenderness or fullness on adnexas. Hmm. Yes, ma'am. Good. सही। सो ये हुआ कंप्लीट है जो जबरदस्त एक होता है फ्लो में एग्जामिनेशन, ठीक है? आई अप्रिशिएट जरगुना, बट जो नाइला ने किया दैट वाज आल्सो गुड, बट नाउ अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, वी शुड इम्प्रूव इट, ठीक है? जब हम इस एक मंथ में ये चीजें छोटी छोटी इम्प्रूव करेंगे तो फिर हमारी जो छोटी बड़ी मिस्टेक्स रह जाएंगी वो हम बाद में कवर करेंगे। बेसिक्स एटलीस्ट आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स पे आ जाएंगे, ठीक है? नाइला समझ आ गई बात? जी जी। गुड। सो ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट का मैंने आपको बीएमआई दे दिया, शी इज हैविंग बीएमआई ऑफ 29, ठीक है? It means she is obese, okay, and there is no other signs of virilization, कोई भी चीज नहीं, hirsutism भी मैंने आपको नहीं दिया। It's simple now a case of secondary amenorrhea. So what will be your next step?
My next step, I will proceed for the investigation. Which investigations you want? Ma'am, along with the baseline investigation, Hmm. including her complete blood picture Hmm. and with her random blood sugar Hmm. and blood group, midstream urine, and viral markers, Hmm. I would like to perform a thyroid function test Hmm. and including the TSH and T4 level Hmm. and serum FSH and LH Hmm. and serum prolactin level. FSH LH or FSH LH ratio? FSH LH Ratio. ratio Yes, ratio. yeah. ठीक है. It is not only FSH LH, it's the ratio जो है बढ़ जाती है. ठीक है. Increase इंक्रीज हो जाती है. अच्छा, why justify thyroid investigation, thyroid profile, why you asked for it, justify it? Because she has the history of amenorrhea And so and history of weight gain also. and So I and if the history is suggestive, then is thyroid patient has either the hypo or the hyperthyroidism that can be excluded from the also from the investigation. So did you inquire beta HCG from me? Pregnancy test. No, pregnancy test and beta HCG, yes. You know, अगर secondary amenorrhea में किसी भी एमेनोरिया में आपने अगर बीटा HCG रूल आउट नहीं किया, केस विल बी फेल्ड, चाहे आपने पूरा बताया हो. Pregnancy test and beta HCG, yes. एक चीज होती है ना रेड फ्लैग, समझ रही हो, पेशेंट सेफ्टी, रेड फ्लैग. अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ पेशेंट सेफ्टी नहीं है, ये माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी है. सही है. आपकी एक छोटी मेडिसिन, एक गलत मेडिसिन उन दोनों को रिस्क में डाल सकती है. सही है. सो इन केस, किसी भी केस में, रिप्रोडक्टिव एज में, एमेनोरिया में, व्हेन यू मिस्ड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा HCG जो भी मांग लो, इफ यू मिस्ड इट, खुदा ना खास्ता एग्जामिनर वहीं पे ही बस बात खत्म कर देती है. ये इतना सेंसिटिव है. मैम एक क्वेश्चन है, अगर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है हमारे पास तो फिर भी हम मांगे? किधर मैंने तुम्हें दी अल्ट्रासाउंड? प्रेगनेंसी का तुमने मुझसे पूछा है? नहीं पूछा. अज्यूम कभी भी खुद से कुछ भी नहीं करना है. एग्जाम इज नेवर अजम्पशन. सही. मैं इसलिए आज इतना तुम लोगों को वो खींच खींच के करा रही हूँ, क्योंकि आई वांट कि आप लोग एग्जाम तक ये जितने दाव पेच है एग्जाम के, ये सीख जाओ. ये एग्जाम बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको सिर्फ समझ के अटेम्प्ट करना ही मुश्किल बात है. इसके दाव पेच समझ के करना. ट्रस्ट मी, थ्योरी पास करना वाइवा से कई गुना मुश्किल है. उसमें आपको एक एक परसेंटेज याद रखनी होती है, लेकिन वाइवा में आपको एक सीक्वेंस, एक फ्लो और एक पेशेंट की मैनेजमेंट जो आप रोजाना हर क्लिनिक में कर रहे हो, वो ही आपको सिर्फ वहां पे करनी है. वो सिस्टमेटिक तरीके से बतानी है. तो मैडम कर तो रहते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर की फेस देख के ना सब कुछ ही भूल जाता है, पता नहीं क्यों. नहीं, देखो, जब सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ तो लाजमी अपना वो रेड, मैं हमेशा कहती हूँ टेक अ रेड पेन विद यू, चाहे कोई सादा सा पेन ले लो और उसमें लाजमी गोल गोल सर्कुलर करके लिखो कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट मांगना है हर हाल में. कुछ भी हो, मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, मैं जो इसमें बताऊं ना बताऊं, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट एक्सक्लूड करके जाऊंगी. आज आज के बाद ये लेसन है आप लोगों को, ठीक है. सो बाकी इसकी इन्वेस्टिगेशंस, FSH-LH रेशो इज रेज्ड, ठीक है. आई एम प्रोवाइडिंग यू फाइंडिंग्स, नाइला. सही. यस मैम. तो FSH-LH ratio is raised, and along with that you have seen the polycystic ovarian disease on the ultrasound transvaginal scan yourself.
So now manage your patient. FSH is also raised and LH is raised. How much Ratio is raised. ratio? जब हाँ Ratio is डॉक्टर increased. रेस Okay. सॉरी डॉक्टर इंटरप्ट कर रही हूँ, रेशो हम्म, कौन सी वाली, LH FSH होती है या FSH LH Altered मतलब Alt- raised है. अल्टर्ड होती है। यार अब कल वाली फाइल मुझसे गुम गई है, मैं थोड़ा सा, अगर मुझे टाइम दे दो मैं उसको निकाल लूं, उसमें मैंने क्लियरली दिया हुआ था। जी जी. LH FSH रेशो लिखा है आपने, रिवर्स हो जाता मोर है देन हाँ ना, तो मोर देन 1.5 to 2। 1:10 हो 2 to जाता है. 3, 2 to 3 ratio 1. हाँ देखो, सॉरी 2 to हाँ 3 ठीक है, 1:1। अच्छा मतलब ये है कि LH आपका बढ़ जाता है, FSH जी कम हो LH जाता है। raise होता है. FSH रिड्यूस हो जाता है. देखो, आम इंडिविजुअल्स में क्या होता है, एफएसएच ज्यादा होता FSH है, बड़ा हुआ होता है। हाँ एलएच कम होता है। पीसीओ के पेशेंट में ये रिवर्स हो जाता है, एक तो रिवर्स हो जाता है और इसका मतलब बढ़ भी जाता है, एलएच जो है वो बढ़ भी जाता है और इसकी रेशो एफएसएच की निस्बत डबल हो जाती है। ये इसका कहने का मकसद है, वो इसीलिए इसको कभी रिवर्स बोलते हैं और कभी बोलते हैं एलएच एफएसएच रेशो इज रेज्ड। ठीक है, ठीक है, सही। ओके। अब बताओ मुझे मैनेजमेंट, तो इस पेशेंट को तुमने क्या डायग्नोज किया? Yes, ma'am. My diagnosis in this patient is because he has secondary amenorrhea and हम्म obesity, and on ultrasound findings there is a polycystic ovary, and हम्म there is on examination there is a altered LH-FSH ratio. हम्म So most probably she has a polycystic ovarian syndrome. So I will counsel the patient in a very empathic way हम्म हम्म and tell her about the diagnosis, and I will involve the MTT, and I will advise her for the healthy lifestyle, exercise, and weight reduction is the first line of the treatment in this case. The core of the treatment for her is to reduce her weight, that will resume her menstruation also, and weight reduction that will decrease her 5 to 10% reduction in her body weight, will improve the insulin resistance also and testosterone level, and then restore her fertility and improve her um, uh, metabolic parameters also. And then dietary recommendation, I will advise her low fat and high carbohydrate diet, and also I will advise her the medications. So first in the form of OCPs and फर्स्ट oral ओसीपीज, contraceptives. Sorry. फर्स्ट ओसीपीज, व्हाट इज योर फर्स्ट फर्स्ट चॉइस फॉर दिस फर्स्ट पेशेंट? फर्स्ट लाइन मैम, फर्स्ट लाइन जो है ना वो मैं तो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल और वेट रिडक्शन के लिए कहूंगी कि एंड उससे रिजल्ट हो जाएगी. एंड सेकेंड लाइन आई विल एडवाइस हर फॉर द स्पाइरोलेक्टोन if the OCPs are contraindicated in this case. अच्छा मेरी So जान, मेरी बात सुनो नाइला, पेशेंट तुम्हारी सेकेंडरी एमेनोरिया की है, 4 महीने से उसके साइकिल्स नहीं आए हैं। विथड्रॉल करवाएंगे मैम. विथड्रॉल, यही मैं कहती हूँ, आप विथड्रॉल लोग जो रियल पेशेंट में करते हो वही आपने बताना होता है। सही ठीक सही है, हाँ. विथड्रॉल करवाएंगे with a progesterone for हम्म 7 days, हम्म and then after withdrawal she can once she bleed हम्म because she has a risk of the endometrial hyperplasia also, हम्म and ओके, then what patient wants, हम्म then we have to further advise for her if she wants a fertility, and then according to her wishes we have to manage her. ओके। फिलहाल जो उसकी विश थी सब, ये वाली एम सेकेंडरी एमेनोरिया वाली, ये आपने खत्म नहीं की है, उसको फॉलो अप नहीं करवाओगी उसको और बाकी चीजें नहीं करवाओगी? एक पेशेंट जो आपके साथ सेकेंडरी एमेनोरिया वाली आई है, उसके साथ पूरा क्या किस्सा कहानी करते हैं? उसके साथ जो है ना ये पूरा जो है ना फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजमेंट उसको उसको बताएंगे हम्म कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सरसाइजेस एंड 150 मिनट्स एक्सरसाइज करे,
कितना उसके बाद हम डाइट कितना उसको बताएंगे, कितना लो परसेंट फैट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। वो कितना परसेंट वो 40% जो है इम्प्रूव ना करेगी? कार्बोहाइड्रेट देनी है, और फैट जो लो, नाइला, और कितना परसेंट वो? फैट जो है ना वो 20 to 30% नाइला, इम्प्रूव। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पूरा यस सुना मैम। करो। ओके, क्वेश्चन पूरा सुनो, फिर आंसर दो, ठीक है? जी जी। लिसन टू द क्वेश्चन कंप्लीटली। मैं पूछ रही हूँ कितना परसेंट उसके एक्सरसाइज और वेट लॉस से उसके ये सिम्टम्स कवर हो जाएंगे? कितना परसेंट वेट लॉस से कितने परसेंट उसको फायदा होगा? वेट लॉस से उसको जो है ना 80% तक तो 5 to फायदा, 10% 80% वेट तक हो लॉस में जाएगा। इम्प्रूव हो जाएगी। फैट यस, 5 to 10%। ठीक है, कल ही तो 5 to किया था 10%, इसको, हाँ हाँ। क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, हमने उसको पूरा कल नहीं बताया। सुना था, कल मेरा वो डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, और अभी जो है ना 5 to 10%, हाँ मैंने लिखा था। इतना डिटेल्ड लेक्चर मैंने अभी वो अपलोडेड है, दोबारा से वो सुनोगे, सब हम्म। सुनोगे, ठीक है? ओनली 5 to 10% वेट हाँ, लॉस 5 to 10% रिडक्शन होती है, बस will इम्प्रूव हो जाएगा। improve her overall symptoms up to 80%. Okay. So, Naila, you're done with your management? यस मैम। Okay. So, it was a good attempt, but a lots of improvement is required. ठीक है? एक मैनेजमेंट के दो चार लाइनें रट्टा करनी होती है, जुमलाबाजी। आज पता नहीं क्यों तुम सारी जुमलाबाजी भूल गई हो, शुरू से आखिर तक। ठीक है? सो गायनी थोड़ा मुश्किल है ना। कुछ भी, गायनी सबसे आसान है, मुझे तो लगता है कि गायनी से आज ज्यादा कुछ आसान है ही नहीं। अनम, आपका मैडम गायनी मुश्किल लगता है। नहीं, इट्स मुझे वेरी भी इजी। मुश्किल लगता मेरा आपसे इजी लगती है। नहीं यार, गायनी बहुत इजी है। तुम लोगों ने बहुत इसको पीसीओएस को सर पे चढ़ाया है, एंडोमेट्रियोसिस को बहुत सर पे। एंडोमेट्रियोसिस को। हाँ, एग्जैक्टली। ये कुछ भी सर, और प्राइमरी एमिनोरिया, ये कुछ भी सर पे चढ़ाने वाली बातें नहीं है। सही से इसको पकड़ो, इसका। प्राइमरी एमिनोरिया अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत हाँ, अच्छा समझ में आया। हाँ, तो यही सच्ची मैं कह रही हूँ। ठीक है। अब ये पीसीओ और एंडोमेट्रियोसिस उससे भी आसान है, वो उसमें तो इतने सारे केसेस हैं। पीसीओ के टोटल 3 है। एमिनोरिया के साथ आ जाएगी, या वेट गेन के साथ आ जाएगी, या फर्टिलिटी के साथ आ जाएगी, या हिर्सुटिज्म के साथ आ जाएगी। बस ये 4 चीजें। बस इसी में तुम्हारा पीसीओस में हिर्सुटिज्म भी कवर हो जाएगा, इसी में बाकी चीजें भी। ठीक है, टेंशन की क्या बात है? बात यह है, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया है पीसीओस का, वो सब दोबारा देखना। अच्छा, कोई और मुझे अब अनम अनम्यूट करो और मुझे इसकी मैनेजमेंट दोबारा बताओ। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ यू विल मैनेज अ पेशेंट हु इज हैविंग 4 months of secondary amenorrhea and is a patient that is been diagnosed with PCOS, जो हम सुबह से केस कर रहे हैं, ठीक है? उसको कैसे मैनेज करोगी? मैडम मैं थोड़ी देर तक बता दूं मैनेजमेंट नेक्स्ट इस पे। मैं जरा अपने हम्म, बेटे को फीड करा रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। सॉरी मैम। इट्स ओके, इट्स ओके। हमारे ग्रुप में आमना, नाउ इट्स योर टर्न। आमना शाह बशन म्यूट करो और हिम्मत करो। शाबाश, देखो नाइला, नाइला ने कितनी हिम्मत की, हालांकि वो उसका ड्यूटी थी, वो बिजी थी, फिर भी उसने हिम्मत की। आई अप्रिशिएट हर। और वो हमेशा वॉलेंटियर करती है और हिम्मत करती है। शाबाश आमना। ओके, सो जरगुना, नाउ इट्स योर टर्न। Yes, ma'am. मैनेज द पेशेंट। Ma'am, same patient. सेम पेशेंट, क्या? Okay. So I'll give support to my patient, tell her about the diagnosis and long-term consequences of this disease. I'll involve MDT. I'll tell different management options to my patient, and I'll encourage her to make a clear decision. I'll tell her about lifestyle modification, including diet, exercise, weight reduction. If she reduces 5 to 10% of her weight, 80% of her symptoms will resolve automatically. And then I'm going to tell her that as my patient has not bleeded from the last 4 months and there is chances of endometrial hyperplasia, I'm going to give her treatment for withdrawal bleeding. Gastrogens or progesterone 10 mg for 7 days for withdrawal bleeding. After 6 to 12 months, I'm going to do endometrial surveillance by ultrasound.
हम्म And as my patient is known case of PCOS, I'll also give metformin for insulin resistance. हम्म And I'll refer my patient to a medical specialist हम्म for her surveillance of other metabolic diseases like hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, हम्म cardiovascular events, हम्म and stroke. हम्म Yes, ma'am. And I'll going to give a patient information leaflet, हम्म and I'll attach her to the support group, and I'll thanks her. Very good, excellent. Okay, excellent. Just one modification I need to add. ऐसे पेशेंट को she is so young, you will just tell her that there are certain impacts of the PCOS condition on her life. She is at risk of developing certain endocrine abnormalities, including diabetes mellitus. She is at risk of developing gestation diabetes. She can develop preeclampsia when she will be pregnant, or there is also risk of subfertility with the patient. So regarding this, I will just provide her information and will ask her for further referrals if required. ठीक है, अभी तक उसने डेवलप नहीं किए हैं, आप उसको सिर्फ इतना मोटिवेट करते हो, उसको इतना बता देते हो, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो कि वो सब फर्टिलिटी भी उसको हो सकती है, और अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो क्या मसले हैं और लाइफ लॉन्ग इम्प्लीकेशंस क्या है. तो दिस इज द ओवरऑल. बाकी बेस्ट था, डायरेक्ट आप उसको रेफर नहीं कर देते एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह के पास. आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस देख ली हैं, शी इज फाइन ना, उसको हाइपरलिपिडेमिया था ना कुछ था. सो आप यू जस्ट काउंसिल हर एंड इन्फॉर्म हर रिगार्डिंग हर कंडीशन. सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. सो किसी को क्वेश्चन कोई पूछना है, यहाँ पे ऐड करना है? Excuse me, ma'am. जी. मैम लेकिन नोट्स पे तो लिखा हुआ है जैसे ये जो इस तरह की PCOS जिनको होता है, हम्म तो उनको मतलब उनमें जो है OGTT हम जो है या 2 ईयरली करवाते हैं, हम्म और जिनका जो है वेट मोर देन 25 kg पर मीटर स्क्वायर जैसे इसका था, हाँ तो हाँ, इसमें हम जो ईयरली करवाते हैं. इसी तरह लिपिड प्रोफाइल भी इनमें हम एनुअली ईयरली करवाते हैं. और एग्जैक्टली. स्मोकिंग का रिस्क जो है वो हर टाइम चेक करते हैं, BMI हर टाइम चेक करते हैं हाँ. एवरी विजिट पे. हम्म तो मैम इसके लिए रेफर नहीं करेंगे? इसके लिए रेफर फिलहाल हम, आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, आप अपनी सेकेंडरी एमिनोरिया मैनेज कर रही हो, ठीक है. आपका सिर्फ काम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना था, अभी तक उसने कुछ भी डेवलप नहीं किया है, ठीक है, कुछ तो भी मैम वो आपके. तो सिर्फ सर्वेलेंस के लिए है ना? हाँ, सर्वेलेंस. आप उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हो कि इस तरह आपकी सर्वेलेंस चलेगी, ठीक है. इट्स नॉट लाइक दिस कि अभी आप जाओ दिल के डॉक्टर के पास या अभी आप जाओ शुगर के डॉक्टर के पास. इट्स नॉट लाइक दैट. आप ओके उसको मैम. रिस्क की एक गाइडेंस दे देते हो और कह देते हो कि आप जो वेट लॉस करेगी तो उसके ये सारे रिस्क भी तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है. तो 80%. यस इसलिए मैम. आप उसको पहले अपने पास दोबारा बुलाओगे कि ओके मैम. विड्रॉल ब्लीडिंग हुई नहीं हुई, इसने ब्लीड किया नहीं किया. अगर नहीं हुआ तो जाहिर है यू हैव टू इन्वेस्टिगेट फर्दर. आपको लाजमी अपने पेशेंट का विड्रॉल ब्लीडिंग करवानी है. अगर वो नहीं हुआ देन यू हैव टू चेक फर्दर कि इश्यूज क्या हो रहे हैं, व्हाई शी इज नॉट ब्लीडिंग. बाकी इसके रिस्पॉन्सेज वगैरह देखोगे, सर्विक्स स्टिनोज्ड नहीं है, सर्विक्स पे कोई इशू तो नहीं है, ठीक है. हो सकता है वो पीछे से ब्लीड कर रही है लेकिन नीचे से आके उसने कोई सेप्टम हाँ वगैरह नहीं बना दिया करोगे. है, ठीक है. सो आप अपनी सेकेंडरी एमिनोरिया के लिए उसको दोबारा यू विल आस्क कर दे, शी विल हैव अ विड्रॉल ब्लीडिंग. इफ शी विल नॉट हैव, शी हैव टू रिटर्न बैक टुवर्ड्स, ठीक. यस मैम. गुड. सो ओवरऑल आपको. एक क्वेश्चन है मैम. जी. अगर वो रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए चाहिए तो उसको चाहिए तो फिर हम क्या देंगे? हाँ, देखो, आप जब हिस्ट्री ले रहे थे ना, तब हम्म. मैनेजमेंट में भी यू विल डिस्कस हर फर्टिलिटी प्लान्स. यू विल डिस्कस हर फर्टिलिटी प्लान. जी जी. हाँ, इफ शी इज जैसे डिजायरिंग. OPD में भी आती है तो उनसे पूछते हैं हम क्या हाँ, आपको क्या चाहिए, आप क्या एग्जैक्टली चाह रही हैं कि एग्जैक्टली. मतलब कि आपको ये दवाई हम दें कि आपको माहवारी आएगी, फिर उसके हम्म बाद आप हम्म बच्चा चाह रही हैं या नहीं चाह रही, या आप माहवारी को ठीक करना चाह रही हैं, हाँ, इस तरह से. इस तरह से. तो वो फिर आपको बता देगी. सही. ये जाहिर है 6 मंथ्स मैरिड है, रिकॉल इसी तरह से है, 6 मंथ्स मैरिड है, 4 मंथ्स एमिनोरिया है. तो इस पेशेंट के लिए इट इज नॉट सुटेबल कि आप उसको COCPs दे दो, ठीक है. नहीं नहीं, हाँ, उसको तो फिर फर्टिलिटी भी चाहिए. एग्जैक्टली. अगर इसमें जो वेट है अगर ज्यादा है और भी, जैसे आपने बताया 29, हम्म अगर इसका वेट और भी है 39 40 तक है, हम्म
तो तो वो फिर तो उसको हम कैसे वो करेंगे? उसके तो वो इवन कहेगी कि मेरा तो वेट से रिड्यूस नहीं होगा, एक्सरसाइज तो मैं मैम करती 40 BMI तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी हाँ के लिए recommend- बेरियाटिक सर्जरी के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, ऐसी पेशेंट, वो तो फिर ओबेसिटी में मॉर्बिडली ओबेस हम्म। पेशेंट हो जाएगी, उसको तो प्री कंसेप्शन ही पहले उसका जो है वेट रिडक्शन, हम पहले उसको सीओसीपीज देंगे कि वो और प्रेग्नेंट ही ना हो, क्योंकि वो हाई रिस्क पेशेंट है, उसको थ्रोम्बोसिस का रिस्क है, उसको जो है बहुत सारे मिसकैरेजेस का रिस्क है, उसको लेबर का रिस्क है, हर चीज का उसको रिस्क है, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया, आईजेडीएम, पता नहीं क्या क्या। तो सबसे पहले तो हम उसको पकड़ेंगे कि तुमने प्रेग्नेंट नहीं होना है। वो तो जो आप डिस्कस कर रही हो दैट इज नॉट पीसीओस, वो सिनेरियो मॉर्बिडली ओबेस पेशेंट के साथ आता है, ये हम करेंगे मैटरनल मेडिसिन में। ठीक है, है। अगर इनफर्टिलिटी के साथ पीसीओ भी है और वो हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए आई है, जैसे आपने कहा था कि हमने जो है ना लेट्राजोल वो स्टार्ट करनी है, लेकिन ये है कि इसमें दिया हुआ है कि हम क्लोमिफिन भी दे सकते हैं। अगर क्लोमिफिन रेजिस्ट हो जाए वो हम्म पेशेंट, हम्म जिसमें हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, हम्म तो उसके बाद जो हम एससीजी देते हैं हम्म गोनेडोट्राफिन, वो हम्म डोज नहीं लिखा है कि कितना देना चाहिए हमें इसको जो है। ये हम सब फर्टिलिटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टुडे इज अच्छा जस्ट, ठीक है ठीक ठीक है। है,